Okay, so the next point is about curricular integration of the subjects. So we have seen that a lot of flexibility have been given to children regarding language that they want to choose or the subjects that they want to choose. But before that, they have said that they have to have a proficiency in something that they have selected and the basic skills. So these basic skill is a proficiency in one or two of the languages that they want to choose, and the basic skills include scientific temper, evidence-based thinking, creativity and innovative thinking. So all these things are developed during the activities that are taken in the kindergarten level. At the kindergarten, that is the foundation level. So whatever they want to choose, the choices will be given to them. But before that, they need to have the basic skills developed with them. Uh, and among these basic skills is the sense of aesthetics and arts also, physical education, and ethical and moral skills, also gender sensitivity, fundamental duties regarding the citizenship, and current affairs and knowledge of the world around them, the states, community, states, country, and the world. Then the next point is okay. So next point also says more or less the same thing. Should I ask her to move? You can go and participate. And among these basic faculties, they have also included artificial intelligence, design thinking, holistic health, organic living, environmental education. So these are also introduced in the coming curriculum. It will be introduced in the curriculum and considered among the basic skills that they need to learn. And the next point says that yeah, mathematics and computation has been recognized as a very important aspect for the growth of our country. Some surveys they must have done, out of which they've concluded that these are very important skills considering the kind of future we are imagining for the country. तो ये सारे skills उन्होंने ये realize किया कि mathematics और computers are very important for them to learn. So that will be also counted under basic skills and will be focused upon. Do you want to add anything? Anybody wants to add anything? You can come here. So, can पुलिस वाले को बुलाना है क्या विचुदा जैसा स्टिग्मा है कि अलग-अलग तरीके के जो कोर्स टॉपिक्स हो सकते हैं किन चीजों पर उसमें फोकस किया जाएगा तो जैसे अलग-अलग वेबसाइट डिजिटल साक्षरता कोडिंग इन सब के साथ में लिंक संवेदनशीलता जैसे कि जेंडर बैलेंस सिस्टम जो है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा मौलिक कर्तव्य नागरिकता कौशल फिर भारत का ज्ञान पर्यावरण संबंधी जागरूकता जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोग कैसे देखते हैं उस पर फोकस किया जाएगा जिससे कि संसाधन संरक्षण हो सके हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं तो उनका भी संरक्षण हो सके ये भी उनको सिखाना चाहिए बच्चों को इसके साथ साथ स्वच्छता साफ सफाई जैसी चीजों को भी शामिल किया जाएगा और उसके बाद का पॉइंट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन थिंकिंग होलिस्टिक ऑर्गेनिक लिविंग पर्यावरण शिक्षा वैश्विक नागरिकता शिक्षा इन सब चीजों पर भी फोकस किया जाएगा और उसके बाद 4.25 जो है उसमें गणित पर ज्यादा फोकस किया जाएगा गणित की सोच जो है भारत के भविष्य के आगामी क्षेत्र और व्यवसाय में भारत के नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और इसी सिलसिले में गणित जैसे जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए
Thank you. The next point talks about how this can be done. So, for children of higher age, they will be given access to people like carpenters and metallurgies and gardening, pottery making. So, they will be given a 10-day course, 10-day bagless period where they will be either the people will be invited to school and they'll be doing only those work, those things, or they will be taken to field visits. And this will be a 10-day bagless period, either during the vacation, the summer vacation, or also it can also be taken for the summer vacation. It has to be done, and between the school the session also it can be taken as and when suitable for the school. And these can also be selected by the children above the grade from grade 6 to 12. And this is what they are trying to do is they are trying to root the education to the Indian culture. So all these things, all these efforts that they are taking in the next topic, in the next point, they talk about knowledge of India. So this knowledge of India to know what is present here, what are the resources present, what are the indigenous things that are already available to us, the traditional ways and methods of learning. They are trying to root everything, actually the learning, the development, सारा कुछ जो development होता है वो हमारे culture को कल्चर में रूटेड होना चाहिए. बाहर का कुछ कॉपी करने से के बजाय जो हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशनली चीजें प्रेजेंट है, जैसे आगे हमने देखा था देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर दैट वी हैव व्हिच इज रिच, देयर इज फिलॉसफी, देयर हैव बीन मैथमेटिशियंस. तो ये सारी चीजें वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि बच्चे बाहर वेस्ट से ज्यादा अट्रैक्टेड ना रहकर जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको यूटिलाइज करें और नए इंडिया का ग्रोथ इन सारों को फाउंडेशन बना के किया जाए. जैसे कि हमने कहा कि गाइडेंस डिजाइन किए जाएंगे तो हाँ ये मतलब जो हमारा सेशन शुरू करेगा उसके बीच में भी हो सकता है और गर्मी की छुट्टियों में तो ये करना ही है. इसमें के बाड़ी का काफी का मालिक का ये सारे जो काम होते हैं मतलब हमें Ma'am, your voice is not clear. जनरली कामों के लिए हमारे को बुलाना होता है, कार्पेंटर को बुलाना होता है, तो जो चीजें क्या आप देख सकते हैं कि वेस्ट में सभी लोग अपने हाथ से करते हैं और हम भी ये सारी चीज कर सकते हैं. मतलब हमने कभी खुद से करने की कोशिश ही नहीं की है. बच्चों को भी कभी ऐसा सिखाया जाता है कि खुद से थोड़ी और लेकर फोटो और कुछ काम कर लो. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बच्चों से यूज करना ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कर सकते हैं हम लोग, तो उसका एक्सपोजर दिया जाएगा वेरियस स्टैंडर्ड्स की एक मॉड्यूल के साथ में. और ये अगर बच्चे चाहे अच्छा अभी चेंज किया था. हाँ अगर बच्चे चाहे तो 6 onwards उसको आगे भी मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं वो उसमें ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो. और इसमें जो इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल में बच्चों को ले जाकर वहाँ की चीजें दिखाकर कि लाइक वहाँ की जो स्ट्रक्चर्स हैं, कार्पेंट्री का जो चीजें हैं वहाँ की वो कैसे बनाई गई है, वहाँ के जो शिल्पकार हैं या फिर जो कार्पेंटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं उनके साथ उनको दिखाया जाएगा उन सब चीजों को. और ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत अच्छी चीजें हैं, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं. जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में भी कहा कि हमारा जो फ्यूचर है भारत का वो हमारे ही बेस पर रहे तो ज्यादा अच्छी है. आई थिंक आप जब नीचे देख रहे हैं तब क्लियर नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ पे माइक ग्रीन होते हुए दिख रहा है. इनकी आवाज एकदम क्लियर है. Over to you, Miss Reena. So you can just keep the paper also up so that when you don't have to look down also. So I think उससे ज्यादा क्या करेंगे. ठीक है.
Okay. So, yeah, in the next point also they have talked more or less about the same thing and given examples and given ways through which this can happen. On the foundational stage, stories are the best ways to do it. So when you have a story which tells you about a Jains living in a foreign place, or a story of a child living in our country, Nikita, in Jabalpur or some place, that is more relatable to them. तो स्टोरीज के लिए उन्होंने जातक टेल्स, पंचतंत्र, हितोपदेश एंड एसॉप्स फेबल्स आर आल्सो written. No, Jewish one. अच्छा. So all these types of stories which have names that are relatable to the children, which have culture which they are nearly associated. So ऐसी ही चीजें करिकुलम में उन्होंने बढ़ावा देने की आप बोला है, जो जिससे बच्चों को कल्चर का ज्यादा exposure मिले. And the same thing about literature also in architecture, medicine, mathematics, philosophy, agriculture, all these all these fields they have talked about getting them as close to as our culture as possible. So this was point 4.28. 4.29 is also the same. Stories, art, games, and sport. Local context. They are talking about the local context. नहीं, तो ये तो बहुत अलग-अलग चीज है. So हितोपदेश, जातक, पंचतंत्र वगैरह जो है ये हम लोग जिनको प्राचीन कहानियां बोलते हैं वो उस कैटेगरी में आता है. But if you are talking about things like local context, so local context would mean stories related to Gond culture, stories related to हाँ जो local still present. हाँ यहाँ का कोई जैसे ठीक है शिवाजी वगैरह का पुणे के साइड में बहुत ज्यादा था, यहाँ क्या चल रहा था, तो the local stories, the local history. So yeah, that is how they have tried to frame the curricular best suited for what they are planning in the future. So that Shirisha ma'am. या मैम, जैसे कि सर ने भी बोला कि वहाँ शिवाजी का था तो यहाँ पर कैसे चल रहा था जो चीजें, तो आज हम लोगों का ऐसे होता है कि हर एक कल्चर की अलग अलग कहानियां होती है. अगर हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर अगर जाते तो वहाँ की भाषा के साथ में वहाँ की कहानियां भी बदलती है. तो लोकल से उनका वही कहना है कि आसपास के अपने अपने एरिया की जो कहानियां वगैरह हैं वो सब कुछ वो लेते हुए साथ में चलेंगे. और जो पहले की पंचतंत्र की कहानियां हितोपदेश वगैरह हैं तो वो सब भी उसमें शामिल की जाएगी, ताकि उनको नैतिक और नैतिक मूल्य, शांति, त्याग, सहिष्णुता, इन सब चीजों का भी ज्ञान जो हम बोलते हैं कि कहानियों के माध्यम से हम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं बच्चों को, तो वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सके, इसलिए उन्होंने इन सब चीजों की बात की है. One thing that is worth noting, the difference between most of the moral stories that we study in books and all, and the stories that we find in Jataka tales and so on. जो हम लोग के जो प्राचीन कहानियां हैं उसमें सब में सिचुएशन पे ज्यादा महत्व दिया जाता है, मगर जो मॉडर्न स्टोरीज होते हैं जिसमें सब कुछ संक्षिप्त में देकर उसे सिर्फ एक मॉरल दे दिया जाता है, उसमें स्टोरी का की वैल्यू घट जाती है, एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर द मॉरल दैट ऑफ टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा कि ये सब स्टोरीज सुनने के वजह से एक तरह का रियलिटी, एक तरह का कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जिसे बोलते हैं, सिस्टमिक थिंकिंग, कि सिर्फ मॉरल के बारे में नहीं सोचना है, आपको पूरी सिचुएशन पढ़नी है, आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में जानना है, फिर हम लोग देन दैट इज अ स्टोरी. That is, I think, a very big difference in this. Yeah, so that's how they have talked about integrating the curricular
not only between the subject but also to the mainland के culture से they are trying to integrate everything. So everything, math, science, English, whatever possible, whatever traditional things that are with us, उनको integrate करना है आज की modern studies के साथ में. So that is how curricular integration will happen. So that completes this part. And So any questions so far in this part? Otherwise, then we'll move ahead to the next part. Yeah, I would like to add the last point. Yeah. बुनियादी स्वास्थ्य के लिए भी इन्होंने बात की है, तो स्वास्थ्य में बुनियादी प्रशिक्षण जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया, मतलब जो इमरजेंसी होती है तो उसमें बच्चों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, साथ में प्राथमिक चिकित्सा भी शामिल है। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर एक नई बात की है, शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के हानिकारक और विपरीत प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मतलब जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, तो उनका साइंटिफिक रीजन के साथ में उसको वो करिकुलम में डालना चाहते हैं, ताकि उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो भी बच्चों को बचपन से ही पता रहे। yeah, thank you so much, ma'am, for pointing that out. Disaster response भी है इसमें. Earthquake, floods वगैरह, first aid. आपदा प्रतिक्रिया. हाँ. So also integrating spontaneous studies, whatever is around them, whatever they see, current affairs के साथ साथ. So by the end of it, then they will be ready for life in general. उनको सारे challenges face करके आएंगे, real world challenges, not just कंपनी में बैठे बैठे अगर किसी ने फायर कर दिया तो क्या करेंगे, बट सच में अगर मेजर challenges आते हैं लाइफ में तो उसके साथ में कैसे डील करना. And in the next thing, next part of it, national curriculum framework for school education. They have said that this will be unlike last few decades, unlike that it will be renewed after every 5 to 10 years. हर थोड़े टाइम में वो लोग उसको renew करते हैं, whatever needs to be added. जैसे अभी artificial intelligence वगैरह उन्होंने नया ऐड किया, तो as and when the situation demands, the time demands, there will be changes in the curriculum. Last time का जो curriculum था वो करीबन 30 साल से बदला नहीं. So this time it will be more not just curriculum, the national curriculum framework, जो main guiding body and guiding text रहता है जिसके basis पे syllabus design होता है, that entire guiding framework itself will change every 5 years, 5 to 10 years. NCF. So this is the same, right? This is the same. NCF. So one more thing worth noting here is यहाँ पर they have mentioned NCFSE. अब तक के we just had NCF and NCFTE, I think. So National Curriculum Framework for Teacher Education. I think ऐसे दो थे पहले. तो अभी now we have NCFSE, we have NCFECCE, something like that. तो early childhood के लिए अलग है, teachers के लिए अलग है, colleges के लिए अलग है. तो सबका अलग अलग framework है. And this is school education. This is for school education. No more questions? Any questions with anyone? I think we need to ask questions to the people who are listening. If they have understood anything, just dodge them with some question. Let's see if they can answer. Quiz करेंगे हम. तो पिछला जो NCF था वो कौन से साल में बना? 30 years back. नहीं, I think it was 2005.
RTE was 2008. Last NPE, National Education Policy, was in 1986. So it is being changed after so many years. 35 years. 34 years. 35. Correct. So 2 generations have already experienced this, but absolutely no change. Should we They move? tried to change. If you remember our discussion the last time, they did try to change. उन लोगों ने CC इंट्रोड्यूस किया था CBSE के थ्रू, जिससे वेटेज ऑन फाइनल एग्जाम्स वाज गोइंग टू गो डाउन कंप्लीटली. द कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट था, मगर वो किसी को समझ में नहीं आया, बिकॉज उसको लाइक वी रेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉलिसी कि अगर कुछ ऐसे चेंजेस हमको लाने हैं तो पूरी पॉलिसी ही बदलनी पड़ेगी. वी कैन नॉट चेंज पीसेस एंड देन एक्सपेक्ट के लोग अडेप्ट कर लेंगे. तो जब सीसी इंट्रोड्यूस हुआ तो प्रॉब्लम यही हुआ कि जो गवर्निंग बॉडी थी, MHRD का जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहां से दे सेंड द डायरेक्टिव्स टू द स्टेट एजुकेशन बॉडीज. स्टेट एजुकेशन बॉडीज से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बॉडीज तक गई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बॉडीज से फिर स्कूल्स तक गई, मगर उसमें क्लस्टर्स तक गई, फिर स्कूल्स तक गई. तो उसमें प्रॉब्लम यही हुआ कि एट एवरी स्टेज पीपल मिसअंडरस्टूड समथिंग और द अदर. तो बाय द टाइम इट रीच द स्कूल्स, तो स्कूल वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसका इंटेंशन क्या था, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट द चिल्ड्रन. वो ऑल दैट वाज लॉस्ट. So that is why it was very necessary to change the entire policy. And also this time they've included everyone. Also They have included everyone from teachers to department heads to everyone, and from the beginning of the policy for suggestions and everything. So what happened last time while CCE came, it was a very complicated process, and like sir said कि वो नीचे आते आते तक लोगों को समझ में नहीं आया. तो एक तक thing was complicated, उसको उतना easy और simple language में समझाया जाना चाहिए था to the teachers who are actually working at the grassroots level. Agar this time this is very good that they have included a lot of programs for teacher training and development. तो गवर्नमेंट कितने भी पॉलिसीज निकाले, अगर वो टीचर्स को समझ में नहीं आए और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो इट विल बी अ फेलियर. इस पॉलिसी में उन्होंने टीचर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, एंड दे हैव इंक्लूडेड देम इन मेकिंग द पॉलिसी. While the policy was into making, they were asking for suggestions. Right? So they have asked people from asked the people who are working at that level, and then these changes have been made. So hopefully it will be more effective. So इसमें there were 3 stages. 1995 से people had started working on it. हाँ, बराबर है. 2015 से people had started working on this, and around 2019 we had discussed this during the orientation also, parents orientation के समय. 2019 में उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट रिलीज कर दिया था, बट इट वाज अ ड्राफ्ट. तो ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के पहले उन लोगों ने बहुत सारे सजेशंस लिए स्कूल ओनर्स से, पॉलिटिशियंस से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, इवन कॉर्पोरेट्स फॉर दैट मैटर. बहुत सारे लोगों के सजेशंस लिए उन्होंने, एंड देन आफ्टर दैट दे केम आउट विद अ पॉलिसी व्हिच केम आउट इन अर्ली 2020. एंड उसके बाद में उन्होंने और सजेशंस लिए सब टीचर्स से कि इसको अब अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ ये पॉलिसी तो बन गई, मगर पॉलिसी के बाद में जो फ्रेमवर्क बनेगा, फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन. ये पॉलिसी को हम लोग रियलिटी में कैसे लाए, हाउ टू मैनिफेस्ट इट इन रियलिटी, हाउ टू गेट इट टू द क्लासरूम. तो उसके डायरेक्टिव्स जो होता है दैट विल बी इन NCF. तो उसमें क्या क्या रहना चाहिए, उसके लिए वापस उन्होंने सजेशंस दिए.
So we had formed a group of around almost 100 to 300 schools, 300 schools in India, and हम लोगों ने मिल के we pulled in all the responses. We came up with the good responses, and सब लोगों ने वो responses fill up किए हैं ताकि ज़्यादा possibility हो वो चीजें accept होने की. भारत क्या? ओके, वो सीसी के बारे में बोल रहा था. हाँ, आवाज जा रहा है? चलो हम कर दो उसको. I remember the year 2009. उस टाइम बहुत सारे सुसाइड्स हो रही थी, बच्चों प्राइमरी लेवल पर भी सुसाइड हुई. तो then Central Minister of Education was Mr. Kapil Sibal, and he with his all ministers they come up with new idea of CCE, continuous comprehensive evaluation. उसमें आया था और उसमें जो वैल्यूएशन है मार्क्स वो बहुत कम हो गए थे बच्चों के. And there was no system like the child is promoted, pass, fail. तो कितनी भी कॉम्पिटेंसीज उसने एक्वायर कर ली उसको नेक्स्ट टर्म में जाना ही है. एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट अप टू द मार्क, उसको अगर मार्क्स नहीं मिल रहे उतने तो उसको रिटेस्ट लिया जाता था उसको. तो ये जो फ्रेमवर्क है ये टीचर्स के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अभी ये उसको हिंदी में बोलते हैं ढकल गाड़ी वाली सिस्टम आ चुकी है कि अभी कोई फेल ही नहीं होगा. जो कॉम्पिटेंसीज उस स्टैंडर्ड में उसने एक्वायर करने चाहिए वो तो एक्वायर हो ही नहीं रहे. तो ऐसा एक उनमें आ गया था. और जो मार्किंग सिस्टम है बहुत कम हो गई थी. जो यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले 80 का था वो 40 पर आ गया था. आई एम टॉकिंग अबाउट 5th 6th 7th. और 7 to 8 वो भी कम कर दिया गया था. तो ये एक डिफरेंस था सीसीए में. लेकिन जो उसका आउटकम उन्होंने सोचा था तो वो वैसा आउटकम उन्हें मिला नहीं सीसीए के बाद में. So they scrapped it in I think 2017. 2017 या 18 में उन्होंने कैंसिल कर दिया था CCE का प्रोग्राम. 2007. No, 2005 में after I came here. I remember I the think year so. that it was introduced, the next year it was still नहीं बहुत देर तक उन्होंने नहीं. लंबाया कोशिश की. 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ. मुझे 3 Idiot के कारण याद है. 3 Idiot में वो सुसाइड का सीन दिखा है. बाद में बहुत सारे सुसाइड हुए फिल्म के बाद. तो अमरावती में भी हुआ. तो फिर वो फ्रेमवर्क ही उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ चेंज करना चाहिए. ओके, तो हमारा आगे का पॉइंट है अभी स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें. इसमें बताया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी और बढ़ते हुए लचीलेपन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव होना चाहिए. सभी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री, चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग के साथ को शामिल करना होगा. लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को भी शामिल करना चाहिए. जहां संभव हो शिक्षकों के पास भी तय पाठ्य पुस्तकों में अनेक विकल्प होंगे. उनके पास अब ऐसी पाठ्य पुस्तकों के अनेक सेट होंगे जिनमें अपेक्षित राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री शामिल होगी. इसके चलते वे ऐसे तरीके से पढ़ा सकेंगे जो उनकी अपनी शिक्षण शास्त्रीय शैली और उनके छात्रों की समुदायों की जरूरत के मुताबिक हो. शिरीषा मैम, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे? हाँ, तो स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं. और तीसरा पॉइंट जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि रटन पद्धति जो है उसको वो बदलने की बात कर रहे हैं कि भाई रटकर आपने आंसर्स लिख दिए, ऐसे नहीं चलेगा. किसी भी चीज को आप समझकर
उसको अपने शब्दों में आप कैसे लिखते हैं इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि हम अभी भी जो क्वेश्चन पेपर्स निकालते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं ताकि बच्चे अपने मन से उसमें कुछ लिख सके। अब इसमें सभी पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री मतलब जो मेन कंटेंट है उस पर उन्होंने जो बताया है वो पॉइंट से चर्चा मतलब डिस्कशन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, फिर एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे अलग अलग तरीके के और उसको एग्जाम्पल के द्वारा ही बच्चों को समझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे हम कहानियों के द्वारा बताते हैं तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो वैसे ही अगर हम कोई जीवंत उदाहरण उनको देते हैं तो उनको जो कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो ऐसी चीजें वो लोग पाठ्य पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं और ऐसी पाठ्य पुस्तकों के अनेक सेट होंगे जिसमें अपेक्षित राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री शामिल होगी। जैसे कि पहले उन्होंने बोला लोकल चीजों को भी शामिल की जाएगी, तो इसलिए स्थानीय सामग्री की बात की है और राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल की जो चीजें होगी वो भी उसी में रहेगी। तो इसके चलते जो है वो ऐसे तरीके से पढ़ा सकेंगे टीचर्स भी और बच्चे भी इस तरीके से पढ़ सकेंगे ताकि उनकी अपनी शिक्षण शास्त्रीय शैली और उनके छात्रों की एवं समुदाय की जरूरत के मुताबिक हो। मतलब अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर का अलग कल्चर है, कहीं का अलग है, तो उन्होंने पहले ही भाषा की बात की है कि रीजनल लैंग्वेजेस चूज करने का स्कूलों को और राज्यों को अधिकार रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना अपना करिकुलम सेट कर सकते हैं। यस शिल्पा। यस सर, यू डोंट। सो आज का ही आई टेक एन एग्जांपल, मतलब ये कल्चर के ऊपर नहीं है बट देन इट इज रिलेटेड टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट के आज हम लोगों का एक थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था, पेपर चेकिंग इज गोइंग ऑन। तो ग्रेड 1 के पेपर में वी सॉ दैट जो दो चीजें, टू थिंग्स हैपेंड। वन इज देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज पुट अबाउट द सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन स्कूल। तो उसमें द क्वेश्चन दैट वाज पुट वाज के आप कौन से सेफ्टी प्रैक्टिसेस स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड जो क्लास में ऑलरेडी वर्बली डिस्कस हो चुका था। तो सम चिल्ड्रन केम अप विद वेरी क्रिएटिव आंसर्स के नाइफ के साथ में भागना नहीं है, सीजर्स के साथ में खेलना नहीं है, ये सब चीजें। एंड वही क्वेश्चन पेपर में डाला था कि व्हाट सेफ्टी प्रैक्टिसेस डू यू प्रैक्टिस इन स्कूल। तो देन पीपल, मतलब द चिल्ड्रन, जो आंसर्स उन्होंने लिखे वो सारे आंसर्स टेक्स्ट बुक के थे। टेक्स्ट बुक डेस्क के ऊपर मतलब वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क, वी शुड नॉट व्हाट वाज द अदर वन, रन ऑन द स्टेयर्स। हां, रन ऑन द स्टेयर्स। मगर वो तो वो करते हैं ना। सो द प्रैक्टिसेस दैट दे डू फॉलो वो तो आई नहीं पेपर पे। जो वो लोग नहीं करते हैं फॉलो वो पेपर पे भी आए। टेक्स्ट बुक का टिपिकल आंसर था, उसमें भी उन्होंने वी लिखा है, तो उनका व्हाट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी इन दिस, वो खत्म हो जाता है। सो द पर्पस ऑफ द लेसन इज फेल्ड, कोई काम का नहीं रहा। तो इसी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कि व्हाट डू यू डू, आप कहाँ से हो, आपने क्या देखा है, आपके कल्चर में क्या है। देन द अदर एग्जांपल इज सिग्नल का। तो सिग्नल का तो बुक में ही देयर वाज एन एरर के एरर मतलब हम लोग इनएक्यूरेसी बोल सकते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, के जो सिग्नल होता है, सिग्नल का जो कलर्स होते हैं दे आर सपोज टू बी ग्रीन, एम्बर एंड रेड, एम्बर एंड ग्रीन। तो टेक्स्ट बुक में येलो लिखा है बिकॉज किसी कंट्री में येलो होगा, तो हम लोग भी उसको येलो ही बोल रहे हैं। सो दैट इज फर्स्ट inaccuracy. The second is उसमें what is the purpose given? Weight. तो weight का जो है अब if you think कि जो lighting sequence है, तो lights पहले कौन सी लाइट जलती है, फिर कौन सी जलती है, उसके बाद कौन सी जलती है। तो पहले तो जब रेड रहता है सिग्नल तो यू आर ऑलरेडी वेटिंग, उसके बाद में ग्रीन होता है तो दैट इज गो, एंड देन आफ्टर दैट ग्रीन जब ट्रैफिक फ्लो में रहता है, फिर येलो होता है फॉर स्लोइंग डाउन, टू यू नो कम एंड बी केयरफुल कि अभी रेड होने वाला है सिग्नल एंड यू हैव टू स्टॉप। मगर वेट कहाँ आया, हाउ इज वेट रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस? क्योंकि वेट फॉर अ व्हीकल इन मोशन मींस आप चलते रहो, वेट एज इन वो कुछ ना कुछ बदलेगा, आप चलते रहो।
but that is not how it should happen ना. इसीलिए तो फिर बाद में रास्ते में people use the yellow signal as a sign to put the accelerator on full. तो the purpose again here is lost. तो हम लोग locally क्या करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है. तो ये क्लासरूम में तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि जहां पर लोकल कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक मैच नहीं होती है, यू हैव टू पिक द लोकल कॉन्टेक्स्ट. मगर बिकॉज हर कोई स्कूल कर रही है, इसलिए हर किसी को वो चैप्टर बस खत्म करने में रेस लगी रहती है. सो दैट इज व्हाई दिस टाइम दे आर ट्राइंग टू गेट इट इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ये ठीक है अगर लोग खुद का दिमाग यूज करके ये सब चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, तो देन हम लोग टेक्स्ट बुक में ही बदलने की कोशिश कर लेते हैं. आवाज नहीं है. सर लेकिन उनको Yes. क्वेश्चन आंसर में भी तो वैसे ही था ना सब कुछ. क्वेश्चन आंसर्स जो बुक में लिखने उनको बोला था उसमें भी वही था कि वी शुड नॉट डू दिस. और उसमें वो आप चैप्टर अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स है. घर के अलग सेफ्टी है, स्कूल के अलग सेफ्टी है, एवरीथिंग इज वो सब कुछ रिपीटेशन में है. तो घर के इसमें इन नाइफ नहीं यूज करना है, सीजर नहीं यूज करना, इट इज फॉर होम. तो इसलिए स्कूल का अलग था कि यू शुड बी इन अ क्यू, यू शुड नॉट रन इन द स्टेयर्स. इसके अलावा मतलब इवन प्रीतिश का एक आंसर उसके खुद का था कि वी शुड नॉट रन ऑन स्टेयर्स. बाकी जो था वो जो टेक्स्ट बुक में था उसने वही लिखा बिकॉज वही सेम उसने क्लासरूम की बुक में भी लिखा है इसलिए. So that's the thing ना कि जो टेक्स्ट बुक में सवाल पूछा था एंड जो पेपर में सवाल पूछा था उसमें थोड़ा सा फर्क था. जो टेक्स्ट बुक में सवाल था इट वाज के व्हाट प्रिकॉशंस और व्हाट सेफ्टी मेजर्स डू वी टेक, वी बीइंग अ जनरल टर्म के लोग क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं. बट देन द क्वेश्चन वाज व्हाट सेफ्टी मेजर्स डू यू टेक, आप अकेले क्या करते हो. एंड ये चीज क्लास में डिस्कस हुई है. जो लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं उसमें ये ऑलरेडी चर्चा हुई है कि आप यू फॉरगेट अबाउट द टेक्स्ट बुक फॉर द मोमेंट, आप क्लासरूम में या स्कूल में क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हो, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेफ. So they were supposed to write that, they were supposed to write their experience, not what is given in the textbook. क्योंकि टेक्स्ट बुक से तो हम लोग पढ़ के ठीक है वी नो द क्वेश्चन एंड आंसर, बट देन उसमें कुछ लर्निंग नहीं है ना. दे हैव टू राइट व्हाट दे डू. So even this has a lot of stress. This even before it had a lot of stress. If you read CBSE के NCERT के जो first 2-3 pages है उसमें ये सब लिखा गया है. NCERT के 2-3 pages है, NCF का जो पूरा डॉक्यूमेंट है, the entire document talks about this. मगर यही है कि क्योंकि सालों से हम लोग टेक्स्ट बुक टीचिंग करते आ रहे हैं तो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ जनरल रूल. मगर दैट इज नॉट व्हाट द एजुकेशन सिस्टम इज फॉर. Any more questions? ठीक है, कंटिन्यू. तो अगला पॉइंट है छात्रों को शिक्षा व्यवस्था पर पाठ्य पुस्तक की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए इस तरह की गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत, उत्पादन मुद्रण की लागत पर मुहैया कराया जाएगा. यह उद्देश्य SCERT के संयोजन में NCERT द्वारा विकसित उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है. अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक सामग्री को सार्वजनिक परोपकारी भागीदारी और क्राउड सोर्सिंग द्वारा वित्त पोषित किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल विशेषज्ञों को ऐसी उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को लागत न्यूनतम पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम जो जहां तक संभव हो NCERT द्वारा तैयार NCFSI पर आधारित हो सकते हैं, तैयार करेंगे और पाठ्य पुस्तकों को
जो जहाँ तक संभव हो एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक सामग्री पर आधारित हो सकते हैं को तैयार करेंगे, जिसमें स्थानीय आस्वादों और सामग्री की जरूरतों के अनुसार शामिल किया जा सकेगा। ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में किया जाएगा। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पर्यावरण को संरक्षित करने और व्यवस्थात्मक बोझ को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एनसीईआरटी द्वारा सभी पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, तो ये तो वो लोग पहले से ही कोशिश करते आ रहे हैं। थोड़ा सा प्रिंटिंग इश्यूज वगैरह होते हैं एनसीईआरटी में, तो वो लोग उस पर काम करने वाले हैं। बट अब तक तो द कॉस्ट एट विच दे आर गिविंग द एनसीईआरटी बुक्स, जो सीबीएसई के जो ओरिजिनल बुक्स है, पब्लिशर वाले नहीं है, ऑक्सफोर्ड वगैरह वो सब नहीं, बट जो एक्चुअल सीबीएसई के बुक्स होते हैं एनसीईआरटी के, वो बहुत मतलब कंपैरेटिवली बहुत लो कॉस्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल 50 to 70 के रेंज में यूजुअली रहता है, कभी कभी उससे कम भी रहते हैं। whereas द सेम टेक्स्ट बुक, अगर 50 रुपीज की कोई टेक्स्ट बुक अगर इसमें है एनसीईआरटी की है, सेम टेक्स्ट बुक आपको ऑक्सफोर्ड या दूसरे कॉर्डोवा वगैरह जो पब्लिशर के बुक्स होते हैं, वो आपको 300 350 की पड़ेगी। सो मोर देन 3 times द कॉस्ट, मोर देन 6 to 8 times द कॉस्ट समटाइम्स। तो दैट इज वन। एंड द सेकंड इज जो कंटेंट है, एनसीईआरटी विल वर्क टुगेदर विद एससीईआरटी, तो नेशनल सेंटर फॉर व्हाट इज एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट? ERT, National Council of Education Research and Training and State Council of Education Research and Training, ये दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे, हाथ में हाथ रख के काम आगे बढ़ेंगे। तो जो पहले का सिस्टम था कि स्टेट बोर्ड अलग चलता था एंड सीबीएसई अलग चलता था, इंटेंशन दोनों का सेम था। एंड अगर आप एज अ टीचर या फिर एज अ पेरेंट या फिर एज अ स्कूल ओनर अगर बहुत इंटेलिजेंटली अगर वो एग्जामिन करते हैं करिकुलम, तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। बट देन क्लासरूम टीचिंग में आप डायरेक्टली अगर बुक से पढ़ा रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता था। एंड इसके वजह से दे आर ट्राइंग टू मेक दिस सिस्टम वेयर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के साथ साथ में लोकल कॉन्टेक्स्ट वाली एससीईआरटी टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल रहेगी एंड दोनों साथ में चलेंगे आगे। सो फ्रॉम द लुक्स ऑफ दिस आई थिंक स्टेट बोर्ड अलग से इतना ये नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, लाइक हाँ इफेक्टिव नहीं रहेगा। इफेक्टिव मतलब डोमिनेंट नहीं रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बिकॉज द नेशनल बोर्ड इटसेल्फ जो सीबीएसई ही रहेगा, वो सीबीएसई बोर्ड भी स्टेट एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करेगा। तो महाराष्ट्र की जो सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स रहेगी वो थोड़ी अलग रहेगी, गुजरात की थोड़ी अलग रहेगी, बंगाल की वेस्ट बंगाल की कुछ अलग रहेगी। तो ऐसे जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल या कुछ जो एडिशनल मटेरियल है वो स्टेट रिलेटेड रहेगा। सो दैट इज वन पॉइंट। एंड द अदर इज अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो ये जो मटेरियल है अब तक ऐसे होते आता था कि दे हैड अ लिमिटेड बॉडी, कि यही बॉडी सब कुछ बनाएगी, सब कुछ लिखेगी, सब कुछ डिजाइन करेगी, वेरीफाई करेगी, सब कुछ। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज अ वेरी क्लोज माइंडेड नॉलेज कि बस इनको जो इम्पोर्टेंट लगता है वही पूरी दुनिया मतलब पूरा देश पढ़ेगा। तो उसके वजह से बहुत स्टैग्नेंसी आ गई थी एजुकेशन में। इफ यू नोटिस इन द लास्ट अराउंड 60 years or so, इंडिया से कोई नया इन्वेंशन नहीं हुआ है। नो न्यू, मतलब इनोवेशन में भी वंस और ट्वाइस, बट देन इन्वेंशन नहीं हुआ। एंड दैट इज अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि वी आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री। इनफैक्ट यूएस वगैरह के भी जो नए इनोवेशंस इन्वेंशंस होते हैं ज्यादातर इंडियन से ही होते हैं, बट वी कांट कॉल देम इंडियंस बिकॉज दे हैव शिफ्टेड अब्रॉड।
तो दैट वो रिसोर्स होने के बाद में, इंटेलेक्ट होने के बाद में भी अगर उभर कर नहीं आ रहा है तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है. सो these kind of changes, ये जो वैरायटी मिलेगी तो दिस विल बी थ्रू पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स, मतलब जो ह्यूमन गुडनेस के लिए काम कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अरविंद गुप्ता, जिसे हम लोग टॉय मैन कहते हैं. तो अरविंद गुप्ता विल बी इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्टली एडिंग मे बी अ फ्यू चैप्टर्स हियर एंड देयर साइंस का. Maybe we have somebody from IUCAA to add a chapter of astrophysics, astronomy, and so on. Maybe we have somebody from ICER to add some chapters on research and education. तो ऐसे जो अलग-अलग bodies है, they will be involved in creating the material. Along with this crowdsourcing भी रहेगा. If you have a particular मतलब crowdsourcing मतलब ये तो गवर्नमेंट बॉडीज ही है, एक्सटेंडेड गवर्नमेंट बॉडीज है, ऑटोनॉमस है, मगर फिर भी उनको गवर्नमेंट का बैकिंग है. आईसर वगैरह ये जो हो गए, आईसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. तो IISc हो गया, NCBS हो गया, ब्रेन साइंसेस, नेशनल सेंटर ऑफ ब्रेन साइंसेस. तो these are still related to the government, but then there are also a lot of private bodies like TIFR हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर अट्रैक्ट हो गया which is also related to टाटा. तो ऐसे you have private research organizations also जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इनफैक्ट TIFR का जो कंपाउंड है, जो इंडिया के जो मॉन्टेसरी के ट्रेनिंग्स होते हैं, सब TIFR के ही कंपाउंड में होते हैं. So there are people who are doing a lot of good work, and इनका भी contribution लेना जरूरी है. So this is how the crowdsourcing will happen, and they will provide the incentives to these experts to write these high quality textbooks. तो अब ऐसा नहीं रहेगा कि बस सोच वो बंद डिब्बे वाली सोच रहेगी. बहुत अलग-अलग तरह से ये चैप्टर्स बच्चों के सामने आएंगे. And again, coming to the NCF part, I think next one we'll take next time, right? Okay. So again coming to the NCF part, जो पिछली बार भी उन्होंने बहुत स्ट्रेस डाल के मेंशन किया था, टेक्स्ट बुक टीचिंग is supposed to be discouraged, and अगर ऐसे लोग टेक्स्ट बुक्स लिखेंगे तो वो अपने आप डिस्करेज हो ही जाएगा. Because we have seen Arvind Kejriwal's talks, we have seen Arvind Gupta's talks, we have seen ICER's available talks. ICER के बहुत सारे talks available है YouTube पर, तो हम लोगों ने देखे हैं कुछ. We have seen a lot of KFI talks, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन वगैरह के भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे. So इसके वजह से अपने आप एक अलग सोच आएगी टीचर्स में भी, बच्चों में भी, एंड डेफिनेटली एजुकेशन बोर्ड में भी. सो 4.33 इज आल्सो ओवर. नो, वो तो एक ही स्टेटमेंट है, तो वो वी कैन फिनिश इट ऑफ. Concerted efforts through suitable changes in curriculum and pedagogy will be made by NCERT, SCERT, schools and educators to significantly reduce the. हाँ वही तो the same thing, मतलब यही पे सामने लिखा है कि टेक्स्ट बुक टीचिंग, बुक बेस्ड टीचिंग कम से कम हो गया अभी नए स्कूलिंग के हिसाब से. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Questions are very necessary because जैसे अभी भी जो एक दो questions आए थे, it helps explore our understanding of this, क्योंकि as I have mentioned in the beginning also, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हर किसी के लिए ये सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी ही, पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी. क्योंकि अगर हम लोग पिछले 30 साल से ज्यादा समय से अगर सेम एजुकेशन सिस्टम करते आ रहे हैं तो इतना बड़ा शिफ्ट ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, फेजेस में होगा, मगर फेजेस में होने के लिए गवर्नमेंट टाइम नहीं देने वाली है. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम अपने आप को इसमें एजुकेट करें और
सवाल उठाए, जहां भी जैसे भी सवाल है, इफ इट साउंड्स रूड इट डजंट मैटर, यू हैव टू आस्क। जहां पर भी आपको कुछ जानने की इच्छा है, अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप ही इसमें लॉस में रहेंगे। सो it's very necessary to ask questions. If you have any questions, you are welcome. ऑलरेडी स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक करिकुलम का बोर्ड है अलग से। हाँ, ये एससीईआरटी की क्या रहेगा? वही बोल रहा था ना हम लोग के जो स्टेट बोर्ड है दैट विल बी डिफरेंट, बट जो सीबीएसई के स्कूल्स है वो अलग अलग स्टेट्स में। पहले ऐसा होता था कि सीबीएसई है तो बस दिल्ली जो डिसाइड करेगी, बाकी सब लोग वही टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। बट अभी धीरे धीरे ऐसा होगा कि सीबीएसई स्कूल्स में भी जो स्टेट के बुक्स है वो थोड़े अलग रहेंगे, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय एससीईआरटी। हम लोग मैं जो बीच में डाइट वगैरह जाता था, द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनका एससीईआरटी का एनईपी का स्टडी ग्रुप है जो एससीईआरटी डिजाइन करने में कंट्रीब्यूट करने वाला है। So we as a school will be actively responsible in contributing to SCERT. तो एटलीस्ट विदर्भ रीजन के जो सीबीएसई स्कूल्स रहेंगे, टेक्स्ट बुक्स रहेंगे, उसमें जो जो चीजें ऐड करनी है वो हम लोगों का भी उसमें वेटेज रहेगा, से रहेगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन रहेगा एससीईआरटी का, तो वो सिर्फ सीबीएसई स्कूल के हाँ, आपस में एक एससीईआरटी दूसरे इज को फॉर बैलेंस सीबीएसई। करेंगे ना, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने को ना। इफ वी हैव द सेम कंटेंट जो सीबीएसई पढ़ा रही है, वही कंटेंट स्टेट बोर्ड अगर पढ़ा रहा है, तो यू कैन हैव द सेम बुक, कॉस्टिंग कम हो जाती है, और वो इन टर्न पेरेंट्स को इट विल बी अवेलेबल एट लेसर रेट्स। इट विल आल्सो हेल्प इन इक्वलाइजिंग द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। जो स्टेट और सेंट्रल में इतना डिफरेंस है एजुकेशन लेवल का, वो उससे वो भी कम होगा। मैंने सर अभी भी कोई सिमिलरिटीज देखी है। मैंने अभी 10th की टेक्स्ट बुक देखी सीबीएसई वो लेसन है इंग्लिश का, बैक्टीरिया का लेसन, वो इनको 9th में फुल इंग्लिश वाले को स्टेट बुक, और वही लेसन 8th में है सेम इंग्लिश में। वैसे सिमिलरिटीज है कुछ? हाँ है ना, काफी जगह है, लेकिन इसके लिए बता मुझे साइंस में। बट देन द प्रॉब्लम है ना भरत सर, उसमें कैसा होता है कि अगर एक जगह पे है ये चैप्टर और दूसरे जगह पे सेम चैप्टर है दूसरे क्लास में, द प्रॉब्लम अप टिल नाउ वाज कि आपके टेक्स्ट बुक में, आपने जहां से भी टेक्स्ट बुक ली है, उस टेक्स्ट बुक में सवाल क्या पूछे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका सोशल स्टडीज अगर देखो, तो सोशल स्टडी अगर आपके दोनों बुक्स में अगर आदिल शाह के ऊपर चैप्टर है, तो एक में अगर ये पूछा है कि वेयर वाज आदिल शाह फ्रॉम, व्हेन वाज दैट सिटी एस्टैब्लिश्ड, तो यू नो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कि ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखना है, तो द चाइल्ड ओनली रिमेंबर्स दोस नंबर्स जब तक एग्जाम पास होनी है, ठीक है। द अदर वन आस्क के आदिल शाह किस चीज के लिए माना जाता था, या फिर जो हाँ उसकी पॉलिसीज क्या थी, या फिर उसको सक्सीड जिसने भी किया उसने क्यों किया और इस तरह से क्यों किया। सपोज किसी ने, जैसे औरंगजेब ने उसके पहले वाले को जेल में डाल दिया, तो क्यों किया ऐसा, उसके ऊपर अगर क्रिटिकल डिस्कशन होता है, एंड एग्जाम्स वगैरह में भी आपको वो क्रिटिकल डिस्कशन के ऊपर कुछ लिखना पड़े खुद के दिमाग से, खुद के इंटेलेक्ट से, तो देन वो बच्चा क्या सोच के बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टीच यू के दिस इज हाउ सम किंग रूल्ड अ सिटी, कि ये इस राजा ने इस तरह से इस शहर के ऊपर राज किया, और दूसरे हाथ पे इफ आई आस्क यू कि आप अगर एक राजा है एंड आप जिस जगह के राजा है वहां के लोगों की ऐसी मानसिकता है, वहां के रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं, वहां की मिट्टी ऐसी है, तो आप किस तरह से राज करेंगे। दोनों में बहुत फर्क है ना। ये तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया ना। दिस चाइल्ड, इफ द चाइल्ड इज एबल टू आंसर, मतलब नॉट इफ, द वे द चाइल्ड विल बी आंसरिंग विल बी हाउ द चाइल्ड विल मैनेज अ कंपनी टुमारो। कल वो कंपनी का सीईओ बन सकता है, ये सिर्फ पीपल स्किल्स के ऊपर,
if I interact with these people like this, if I interact with these resources like this, and अगर मैं अपने आप को इस तरह से apply करता हूँ, तो I will become the owner of a company. हाँ, लेकिन मैंने जो बुक्स देखी है सीबीएसई, तो 10 का बहुत कॉम्पिटेंट लेवल है सीबीएसई, और अभी जो नया सिलेबस आया है 2 साल के इंट्रोड्यूस किया है, मैं उसकी ट्रेनिंग को मिला, तो बस पूरा इन जनरल ही हिस्ट्री, इन जनरल मतलब यानी जो कॉम्पिटेंट लेवल 10 के हिसाब से चाहिए वो है नहीं उसमें। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास और उस चीज को कंपेयर जैसा पहले क्वेश्चन ज्यादा मैटर करता है, क्वेश्चन ज्यादा मैटर करता है, क्वेश्चन भी इंटरनल है, कुछ कॉम्पिटेंट नहीं। जैसा पहले के सिलेबस में बस वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ये ठीक है, उसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, लेकिन हिस्ट्री बहुत उन्होंने नहीं। तो अभी क्या है हिस्ट्री? जैसा लेवल्स में रिसोर्सेस जो है, रिसोर्सेस को उन्होंने 3 इसमें डिवाइड किया। वो तो ज्योग्राफी में मेडिवल, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस हिसाब से वो चल रहा है बीच से ठीक है। So if there are no questions, we can continue this tomorrow with transforming assessment for student development. हाँ, तो अभी तो टीचिंग डिस्कस हो गया, तो अभी असेसमेंट आएगा, करिकुलम भी हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ चीजों का मैटर मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए। वो अब कितना सब चेंजेस होगा पता नहीं। एक सिंपल सा जैसे प्रीतिश की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में क्या है, वो टेक्स्ट बुक में वहां पे कि इंग्लिश ना, वो टेक्स्ट बुक में मुझे कोई एकदम बहुत प्रॉपर लग रही है, और मतलब उसमें कोई स्टोरीज ऐसा बता रही हूँ मैं, बस एक टेक्स्ट बुक की जब अपनी बात चल रही है तो देर आर मेनी थिंग्स, एक अगर अपन चैप्टर देखते हैं तो सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं चेंजेस के लिए। तो वो कौन करने वाला है? दैट्स अप टू अस। स्कूल वाले अपना अपना डिसाइड करेंगे कि कैसा रहेगा फिर वो। तो पहले तो उसमें उन्होंने जो मेंशन किया है अबाउट द पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप, क्राउड सोर्सिंग एंड इंसेंटिवाइज्ड एक्सपर्ट्स, तो ये लोग चेंजेस लाएंगे। तो ये लोग वो लोग हैं जो रियल वर्ल्ड के पीपल है। लाइक अब तक ऐसे आता था कि द पीपल हु राइट टेक्स्ट बुक्स नॉर्मली वो ऐसे लोग होते हैं जो पिछले 30 साल से क्लासरूम में गई नहीं, क्योंकि इफ यू चेक कि क्राइटेरिया क्या है, टेक्स्ट बुक कौन लिख सकता है, तो उसमें यही रहता है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहना चाहिए, उस फील्ड में एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो वो ऐसा व्यक्ति रहता है जिसे ना ही लोगों का नॉलेज रहता है, ना ही बच्चों का नॉलेज रहता है, और ना ही क्लासरूम का नॉलेज रहता है। एंड डेफिनेटली आज के बच्चों की मानसिकता एंड इंटेलिजेंस का बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं रहता है। तो ऐसे लोग जब टेक्स्ट बुक लिखते हैं तो देन इट इज ऑब्वियसली डिस्कनेक्टेड। बच्चा कहीं और जा रहा है एंड टेक्स्ट बुक कहीं और जा रही है। सो वो मिनिमाइज करने के लिए दे हैव गिवन अ वेरी हाई डाइवर्सिटी कि अब के जो टेक्स्ट बुक्स लिखे जाएंगे वो ऐसे लोगों से लिखे जाएंगे जो या तो रिसर्च में है, या फिर रियल वर्ल्ड में है, एक्चुअली कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, या फिर एक्चुअल टीचर्स है जो एक्टिवली अभी क्लासरूम में जाते हैं, जिनको पता है अभी बच्चों की मानसिकता क्या है। तो ऐसे रियल वर्ल्ड लोगों का वो लोग इनपुट लेने वाले हैं। जैसे अब मुझे थोड़े दिन पहले पता चला था कि विजया कॉन्वेंट में देयर इज नो इंग्लिश टेक्स्ट बुक। मुझे वो एक कंसेप्ट अच्छा लगा, सो आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं है, देयर इज अ ग्रामर फॉर देम, एंड इंग्लिश में वो लोग क्या लेते हैं आई डोंट नो, बट अपन लोग ये चीज को जैसे इंग्लिश में रीडिंग करवा सकते हैं। कोई भी इतना सब कुछ अपने पास लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है, तो वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब मैं वो कंपेयर नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल टू यू, जो मुझे अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस। वो कि ग्रामर, ऑफ कोर्स इंग्लिश में ग्रामर इज
इम्पोर्टेंट, ये सबको पता है। तो उसके साथ वी कैन टेक कुछ और रीडिंग का या जो भी आपको ठीक लगता है वैसे, रादर देन गोइंग टू द टेक्स्ट बुक। जैसे अभी वो उनके टेक्स्ट बुक में काइट है, ये जो जो अलग अलग छोटे छोटे जो लेसन्स है, पोयम्स है, इससे अच्छा अपन इसमें भी जा सकते हैं। इफ इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, मुझे अच्छा लगा था ये। That is What what we we- had introduced 2 years back, if you remember, in our school also. Since 2 years, last year, oh sorry, Yeah, we since उसके the भी पहले last से। 2 years we had introduced that. तो we I have don't literature know books. because मैं प्रीतिश के हिसाब से कंपेयर करती हूँ जो भी चीज, मतलब 2 years back he was very small, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है वो चीज का। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हम लोग का ये सिस्टम रहता है कि एक लिटरेचर बुक दी जाती है। इट्स नॉट इवन शॉर्ट स्टोरीज, इट्स वन लॉन्ग स्टोरी। एंड जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो थ्रू कम्युनिकेशन एज अ लैंग्वेज, जैसा पहले मेंशन्ड है वैसा होता है। ग्रामर में एक्चुअली ऐसा होता है कि ग्रामर इज अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट। The reason why children like it and the reason why children score in it is because it is very mathematical कि अगर ये किया तो वो होता है वैसा। But then जो language development में सबसे ज्यादा important होता है that is context and that is communication। And ये चीज हम लोग through literature लेते हैं। Textbook तो is like a helper in वैसे देखा जाए तो। But then the main importance is given to one story जो पूरे साल भर चलती है। And actually what happens, ma'am, is children come from different backgrounds. तो मे बी प्रीतिश बहुत रीडिंग करता होगा तो उसको वो बुक का लेवल थोड़ा कम लग रहा है, बट दैट इज वन वे। मैम मैं प्रीतिश की बिल्कुल नहीं बात कर रही हूँ, उसका लेवल तो बराबर है, जो चल रहा है वो एकदम प्रॉपर है। मेरे को वो कंसेप्ट अच्छा लगा था, अपन लोग वो चीज कुछ कर सकते हैं अपने स्कूल में भी। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे इंग्लिश में वी कैन टेक सम कुछ भी, जैसे थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू वी कैन गो टू, जैसे अगर मैं आप लोगों को एक टॉपिक देती हूँ कि यू हैव टू राइट 5 लाइन्स ऑन बर्ड या कुछ भी, जैसे अपन एक बर्ड के ऊपर भी उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि क्या है विंग्स, ये वो सब कुछ, एंड दे कैन मेक देयर ओन सेंटेंस 5 लाइन्स 10 लाइन्स जैसे भी होता है। तो वो उनके लिए बिल्डअप होने के लिए ये चीज मैं बता रही हूँ, मतलब कि रादर देन गोइंग टू टेक्स्ट बुक। मैं प्रीतिश का बिल्कुल नहीं करी, वो तो बराबर वो लेवल के लिए है, उसके अभी भी बहुत मिस्टेक्स होते हैं, वैसा मैं प्रीतिश के साथ नहीं कंपेयर कर रही हूँ। मेरे को वो कंसेप्ट अच्छा लगा तो मैं आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। Yeah, thank you for that, ma'am. I'm just trying to tell you कि that is what we have considered कि ये these methods are good। और हम लोग generally April में क्या करते हैं कि we focus on one language to develop it completely, और उसको develop करने के लिए most of the time everybody is talking in that language at that point of time, and there are assembly based upon different activities जो सिर्फ language develop करे उस particular language को। तो आप जैसे बता रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग वगैरह, वो हम दोज आर ऑल डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग द लैंग्वेज, एंड टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ देम, जस्ट वन ऑफ देम। सारा सेंटर फोकस टेक्स्ट बुक पे नहीं रहता है। देयर आर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी आल्सो, दे आर गिवन रीडिंग एंड स्टोरी टाइम। वो अलग अलग उनके लिए टाइम इन अ डे होते हैं जब वो सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं, वहां पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछने आएगा, तो जस्ट रीडिंग। देन देयर इज नरेशन, जिसको स्टोरी आती है दे वांट टू नरेट इन द क्लास। All these are different methods. जैसे आपने अभी इनके क्वेश्चन पेपर्स में जैसे रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, वो कंसेप्ट अच्छा था, जो लास्ट ईयर भी शायद लास्ट सेमेस्टर या जो भी अपने आए थे तब भी पेपर में वो आया था। रादर देन गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टेक्स्ट बुक, जो अभी लास्ट के 4 क्वेश्चंस थे इस साल अपने क्वेश्चन पेपर में, बट ये चीज मुझे अच्छी लगी थी कि पैसेज दिया था और उसके ऊपर आपको लिखना था, या आपने वो पिक्चर दिया था एंड यू हैव टू राइट द 5 लाइंस। तो उसमें प्रीतिश को काफी प्रॉब्लम गई थी लाइंस लिखने में, बिकॉज देयर वर मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो सब कुछ था। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था जो आप लोगों ने भी जो डाला था, जैसे आप उसमें कुछ और चीजें 2-3 इमेजेस डाल के बोल सकते हो कि यू कैन नरेट अ स्टोरी ऑन दिस एंड यू कैन राइट अ 5 लाइंस। मतलब मैं बोल रही हूँ इन शॉर्ट कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हुए, ओके फॉर अ मीडियम टू जस्ट टीच देम, दैट्स गुड, बट जो आपने अभी डाला था पैसेज वाला राइटिंग और पिक्चर देखकर 5 लाइंस लिखना, दैट वाज गुड। Thank you. So we close it. Okay, so okay, we can close this here and we'll meet again tomorrow with
the next topic. We'll begin with the question answer. अगर आज भी मतलब after all this is over and आप इस पे कुछ सोच रहे हैं, if you have more questions, so we can begin with the question answers tomorrow, and then we'll continue with the next topic. Okay. Thank you very much for joining in. Thank you. Thank you. Bye, everyone. Bye.